everyone. My name is Kalpana Prasad and I'm from Gajra International School, Katargam. And he is my friend Heath Patel. We both are from grade 9 and today on the occasion of International Doctors' Day, we have prepared a wonderful talk show on preventive healthcare. Friends, on this special occasion, I would like to speak about the most important person in our life. The person is given stature next to the God, and that person is the doctor. The doctor is an essential element of our society. Sole purpose of a doctor is to provide their patients with a happier and a healthier life. Doctors are the real heroes who devote their time, their life, and their health to the people those who are in need. Therefore, their profession is the noblest of all. Today, National Doctors' Day is celebrated all over the world to appreciate and recognize what doctors play an important role in our society. On today's special day, we all should be appreciative for what doctors do for us. One day is just not enough to honor what doctors do for us and the sacrifice they give for us. Friends, to know more about today's topic, we have with us an eminent guest, Dr. Vimal Rathi, who is by profession a cosmetic dentist, tobacco toxicologist, and a world records holder from city of Surat. He is also founder of some projects such as World PhD, Night Brushing Awareness Day, eGen, and Healthy Hamesha. He has been working as a consultant in many well-known hospitals of Surat. So, on behalf of our Gajera family, we welcome you, sir. Thank you very much. So, what motivated you to become a doctor? कल्पना वैसे तो कोई विशेष कोई मोटिवेशन नहीं रहा है. There was no motivation per se that I wanted to be a doctor or anything like that. But right from my childhood, I used to carry a notebook. In that notebook, I used to always write down the medicines for common ailments. So I was into the character of a doctor, I would say, right when I was in fifth standard. And every seed has a DNA in it which knows what it is ought to become. So I always felt that I have to be a doctor, and I'm very fortunate that I'm blessed to be a doctor, because in this profession you get to know the most technologically advanced gadget on the planet, that is you yourself. So motivation कहा जाए तो ऐसा कुछ particular कोई motivation नहीं रहा है, but right from childhood I always wanted to be a doctor, and I'm very happy about that. That's great. Sir. So, we have heard of words like entrepreneur, but never heard of healthpreneur. Could you please elaborate more on this word? See, entrepreneur is a word which is very popular nowadays. These days, if you really want to connect with people, and to connect with people, I said, if someone is working primarily, predominantly on health, why not introduce the word healthpreneur? Likewise, I've introduced many other new names as well, Kalpana. Jaise, there is one word which I have coined, that is dietox. That is diet plus detox. Diet is something what you consume, detox is something which you remove from the body, right? So dietox करके भी एक term है जो मैंने introduce किया, and I always feel that जब तक आप कुछ अपनी creativity नहीं डालते हो words के अंदर भी, तब तक आप उस subject को गहराई से नहीं समझते. वर्ल्ड पीएचडी करके मेरा एक कॉन्सेप्ट जैसे हीथ ने बताया था. फिर हेल्दीज्म, इट्स अ रिलीजन विच आई हैव फाउंड, और उस रिलीजन का भी जो नाम हेल्दीज्म है, दैट इज आल्सो अ न्यू वर्ड्स. आई ऑलवेज प्ले विद वर्ड्स, ऑलवेज इंट्रोड्यूस समथिंग न्यू which makes us connect with people in a better way. That's really fascinating. Thank you. So, would you like to share your views about your preventive health mission? See, there are basically 8 preventive healthcare missions on which we work. So वैसे देखा जाए तो हर इंसान को हेल्थ के ऊपर वर्क करना ही चाहिए. हेल्दीज्म इज वन थिंग विच वी हैव इंट्रोड्यूस्ड, विच explains you about inner journey. There are two journeys which an individual undertakes. One is getting to know themselves, another is connecting with people. जैसे हर पक्षी के दो पंख होते हैं, तभी जाके वो नेविगेट कर पाता है. वैसे ही आप जब तक ये दोनों एस्पेक्ट नहीं कवर करते हैं, तब तक आपकी लाइफ इनकम्प्लीट लगती है. So we have introduced two things. One is healthism, that is all about inner journey. Then एक हमारा कॉन्सेप्ट है वर्ल्ड पीएचडी. जैसे आपने देखा होगा, बहुत सारे दिन हम आज मनाते हैं. वर्ल्ड एड्स डे है, डायबिटीज डे है. मोस्टली बीमारियों के नाम पर दिन बहुत ज्यादा है. तो हमने एक पॉजिटिव नेम के साथ में वर्ल्ड प्रिवेंटिव हेल्थ केयर डे इंट्रोड्यूस किया है, विच इज सेलिब्रेटेड सिंस पास्ट 6 years नाउ ऑन एवरी इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया. 15 अगस्त के दिन हम ये दिन सेलिब्रेट करते हैं एज वर्ल्ड पीएचडी. 8 हमने मिशंस बनाए हैं. उन 8 मिशंस के 8 सिंपल एक्टिविटीज हैं.
इनफैक्ट गजेरा स्कूल को मैं इनवाइट करता हूँ कि सभी बच्चे इन 8 मिशंस के बारे में जरूर जानें, और इन 8 मिशंस की 8 एक्टिविटीज अगर आप करते हैं तो कहीं ना कहीं सोसाइटी के साथ आप कनेक्ट भी हो पाते हैं, और सोसाइटी को जो हमारा मोटिव है मेडिसिन फ्री लाइफ, वो चीज आप दे पाते हैं। अभी 8 मिशन भी कितने सरल मिशन है आपसे। पहला मिशन है मिशन ऑक्सीजन, जिसमें हम प्लांट एंड एडॉप्ट ट्रीज, पेड़ पौधों के रिलेटेड अवेयरनेस, क्योंकि आपको सेहतमंद रहना है तो सबसे जरूरी चीज क्या है, आपका एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट इज द फर्स्ट थिंग विच यू मस्ट टेक केयर ऑफ। तो हमारा पहला मिशन है मिशन ऑक्सीजन। दूसरा मिशन है मिशन स्प्रेड स्माइल। स्प्रेड स्माइल में हम लोग योग और मेडिटेशन के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करें। लोगों को लगता है स्प्रेड स्माइल मतलब खुशियां बांटना, वो बात की बात है, पहले आपको खुद अंदर से खुश होना पड़ेगा। इफ यू आर हैप्पी फ्रॉम इनसाइड, जैसे आपका स्लोगन भी है, मैंने देखा, वन हैप्पीनेस, मतलब ये खुशी जब तक आपके अंदर ना हो तब तक आप बांट नहीं पाएंगे। आपके पास रुपए है तो रुपए बांटोगे, डॉलर है तो डॉलर बांटोगे, खाना है तो खाना बांटोगे, जो चीज आपके पास है वो आप spread around. So first thing is yoga and meditation are things which keeps you happy from inside. If you are happy, you can spread happiness. तो मिशन स्प्रेड स्माइल हमारा दूसरा मिशन। उसी प्रकार मिशन क्लेanलीनेस हमारा तीसरा मिशन है, जिसमें हमारी एक्टिविटी है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डस्टबिन्स। इसी तरह से 8 मिशन हैं। आपको एक पूरा पीडीएफ दिया जाएगा, उसके अंदर 8 मिशन दिए हुए हैं। मैं चाहूंगा कि सभी बच्चे इन 8 में से कोई ना कोई एक एक्टिविटी 15 अगस्त के पहले करें, और ये जो वर्ल्ड पीएचडी प्रिवेंटिव हेल्थ केयर डे, जो वर्ल्ड प्रिवेंटिव हेल्थ केयर डे जो हम मनाते हैं, उसमें योगदान करें। सो दिस इज अबाउट प्रिवेंटिव हेल्थ केयर। वैसे तो बहुत वास्ट टॉपिक है, लेकिन मैंने उसका एक छोटा सा ग्लिम्स आपको बताया। Thank you, sir, for sharing your views. Sir, can you tell what is your mission and vision about medicine-free life? See, as per WHO, first let me come to the definition of health. Usually what people think that health is lack of disease or absence of disease, but that's not the case. Health is a state of complete physical, mental, social and spiritual well-being. It is not just merely absence of disease or infirmity. When you talk about vision, I would say best of the health in all these 4 dimensions, that is physical, mental, social and spiritual. A car is a car, a best car only when all its tires are inflated well. Even if a single tire is missing, or even if there is issue with single tire, then the car cannot move forward. Likewise, all these 4 dimensions are being taken care. So that is our vision for it. And as far as mission is concerned, we promote the 8 missions, as I said. वर्ल्ड पीएचडी के हमारे 8 मिशन हैं, उन 8 मिशंस को हम प्रमोट करते हैं। और हमारा जो सेंटर है दैट इज एट इस्कॉन मॉल इन पिपलोद, वहाँ पे बाहर हमारे पास काफ़ी बड़ी स्पेस भी है, जहाँ पे हम इन 8 मिशंस को रेगुलर बेसिस पे एक्टिविटी के तौर पे हम करते भी हैं। एंड एज फार एज इनर जर्नी इज कंसर्न, मेरा खुद का एक रिलीजन है जिसके 15 प्रिंसिपल्स हैं। वो पीडीएफ जैसे मैंने बताया कि आपको लिंक में दिया जाएगा। वो 15 प्रिंसिपल्स आपको इनर जर्नी के बारे में बताएंगे। सो इनर जर्नी के लिए हमारा हेल्दीज्म कॉन्सेप्ट है। आउटर जर्नी के लिए हमारा जो लोगों से कनेक्ट होने के जो प्रोग्राम्स है वो वर्ल्ड पीएचडी के 8 मिशन है। सो दीज आर प्राइमरीली द विजन एंड मिशन ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन, और यू कैन से माय पर्सनल विजन एंड मिशंस। It's really great, sir. Sir, can you tell how do you handle stress while you work? See, what is stress? I have not met stress till now. I always feel if you are facing the sun, you will never see the shadow. Yes. तो मुझे आज तक मैंने कभी स्ट्रेस मेरी लाइफ में मैंने क्या होता है मुझे पता नहीं है, विद द सोल रीजन दैट आई एम ऑलरेडी ऑक्यूपाइड विद सो मेनी डिफरेंट थिंग्स। एंड व्हेन, जैसे आपका नाम है हित, Yes, sir. लोगों के हित में आप लगोगे ना, तो आपको कभी स्ट्रेस इस जन्म में तो नहीं आएगा। अगले जन्म का मैं गारंटी नहीं दे सकता, मगर इस जन्म में आपको जो है स्ट्रेस नहीं आएगा। आई हैव नेवर एनकाउंटर्ड स्ट्रेस। आप मुझे सुबह जैसे दोगे उससे ज्यादा फ्रेश तो मैं रात को सोने से पहले रहता हूँ। It is solely because of the attitude towards life. I would contribute it to that way. और कभी कभार जो फिजिकल स्ट्रेस अगर कुछ लगता है हमें, तो उसके लिए तो थोड़ा बहुत स्ट्रेचिंग वेचिंग कर लिया या कुछ कर लिया, दैट्स इट। अदरवाइज मेंटली तो कभी कोई स्ट्रेस मैंने फील नहीं किया है। It can be a role model for us, sir. थैंक यू वेरी मच। You're most welcome, sir. Can you give some suggestions about healthy life and a hygiene for children? See,
one most interesting aspect which I have introduced was a night brushing awareness pillow. एक पिलो बनाया था मैंने जिसपे आप जैसे ही लेटते हैं तो उसमें आवाज आती है. सो हाइजीन के अंदर, डेंटल हाइजीन के अंदर फर्स्ट हैबिट विच एवरीवन मस्ट इनकलकेट इज नाइट ब्रशिंग, राइट. एक खाली कमरा है उसे साफ करना बहुत इजी होता है. 10-15 फर्नीचर लगा तो उस कमरे को साफ करना हार्ड हो मुश्किल होता है. वैसे जिनके दांत नहीं है उनकी सफाई करनी आसान है, लेकिन अपने मुंह में 32 दांत हैं और हर दांत के 5 सरफेसेस होते हैं. एंश्योर दैट एवरी सरफेस ऑफ द टूथ इज क्लीन यूजिंग अ सॉफ्ट ब्रश. एंड दांत के बीच में से क्लीन करने के लिए बेस्ट थिंग है, जब भी कुछ खाते हैं इमीडिएटली रिंस कीजिए. That's the simplest way to clean, and there are so many other devices which are available. Water irrigation devices भी आते हैं जो oral cavity को irrigate करने के लिए devices आते हैं, dental floss आते हैं. There are so many tools which are available. But आपको पता रहना चाहिए कि उन tools को कैसे use करना है. आप जब भी ब्रश करते हैं आपके दांतों के ऊपर एक परत जमती है जिसे प्लाक बोलते हैं. लोगों को लगता है कि हम खाना खाते हैं उसकी गंदगी जमती है, वो दैट्स नॉट द फैक्ट, इट्स ओनली हाफ अ फैक्ट. एक बकेट में आप पानी रख दो, कुछ समय के बाद आप देखोगे तो पूरी बकेट चिकनी हो जाती है, राइट. लाइकवाइज इन योर माउथ इट इज कंटिन्यूअसली फ्लडेड विद सलाइवा, so there is so much of plaque which is automatically getting formed. So the main purpose of cleaning is to remove this plaque. It is not just about dental hygiene. Anything if it is unclean, it is going to cause trouble, right from the top of your head till the toe. Not just the body, even अगर आपके मन के अंदर भी बहुत सारी विलीनताएं होती है, मतलब मान लीजिए बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो कि बोलते हैं ना गंदगी जिसको बोलते हैं, उसको आपको रेगुलरली इंस्पेक्ट करना पड़ता है और फिर उसको जो है आपको अपनी बॉडी में से डिलीट करना होता है. So cleaning and hygiene is one of the most important aspect to health. There is no doubt at all. और जैसे मैंने बताया डेंटल हाइजीन के लिए there are different tools. माउथ रिंसिंग याद रखना है, जैसे कुछ खाते हैं इमीडिएटली माउथ रिंस करना है. टंग जरूर क्लीन करना है. दांत अगर जीभ के ऊपर व्हाइट कलर की अगर कोई कोटिंग दिख रही हो तो वो कोटिंग बिल्कुल नहीं दिखनी चाहिए. द पिंक नेचुरल कलर ऑफ द टंग मस्ट बी विजिबल. बहुत बेसिक चीजें मैं बता रहा हूँ. But if your foundation is good, I am pretty sure you can construct a big, large building onto your foundation. So here I am speaking about very basic stuff: mouth rinsing, night brushing, and ensure whenever अगर आपको टेस्ट करना है कि आपके दांत क्लीन है या नहीं है, आपके नेल से एक बार आप खरोद के देखिए. अगर व्हाइट कलर का पाउडर निकलता है तो समझ लेने का कि क्लीनिंग एफिशिएंट नहीं है. अल्टीमेटली आपको प्लाक अगर आप निकाल पाए, सेम प्रिंसिपल अप्लाई टू द होल बॉडी. गो एंड आस्क डॉक्टर्स ऑफ वेरियस फ्रेटर्निटी. अगर लीवर के स्पेशलिस्ट या मतलब जीआई ट्रैक के स्पेशलिस्ट है तो उनको पूछिए कैसे क्लीन रख सकते हैं. आई के अगर डॉक्टर हैं तो उनसे आप पूछ सकते हैं. स्किन के अगर डॉक्टर हैं तो उनको पूछ सकते हैं. हर एक फैकल्टी के डॉक्टर्स को खासकर उनकी सब्जेक्ट की जो चीज़ है उसको क्लीन, बेस्ट वे में क्लीन कैसे रख सकते हैं, वो अगर आपको पता हो ना तो लाइफ की मैं कहूँगा ऑलमोस्ट सारी बीमारियों से आप मुक्त हो सकते हैं. Thank you for helping us out, sir. So, would you like to share your experience as a doctor? There are so many interesting experiences that happens in life. But overall, if you say, as I said before also, that if someone is truly blessed, they get to become a doctor. There's no doubt at all in that. Because you understand body. Otherwise, you are in a room where there is no light and there's nothing to view. But once you are a doctor, you exactly know more about your body. आपके बॉडी में क्या चल रहा है क्या नहीं है. अगर कोई आपको तकलीफ भी आती है, you are able to understand it in a better way and you are able to deal with your body in a better way. So I really feel experience as a doctor, one has to be a doctor to experience it. It is like अगर मान लो किसी ने कभी आम नहीं खाया है, उसको आप आम कैसा होता है कैसे समझाओगे, नहीं समझा सकते. बस वैसे ही मैं मानता हूँ being a doctor is one of the best thing on this planet and I'm so fortunate to be a doctor. There is no doubt about it. Yes, so thank you, sir, to share your view and experience. Can you tell us or elaborate the term cosmetic dentist? See, beauty or beautification is the highest form of intelligence. जैसे मान लीजिए जैसे जैसे एवोल्यूशन आगे बढ़ता है वैसे ही ब्यूटी को जो है इम्पोर्टेंस ज़्यादा दी जाती है.
वैसे भी अगर आप देखते हैं 3 टर्म्स अपने बहुत वेद पुराण के टाइम से भी चलते आ रहे हैं, सत्यम, शिवम एंड Sundaram. सुंदरम। द थर्ड एस्पेक्ट ब्यूटी, जब तक आप प्रोपोर्शंस है, जियोमेट्री है, सिमेट्री है, इसको आप नहीं अगर इनकॉर्पोरेट करते हैं अपनी लाइफ में, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज मिसिंग रहती है। उसी प्रकार कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री के अंदर जितने नेचुरल एलिमेंट्स या जितनी नेचुरल चीजों से आप दांतों को रेस्टोर कर सकते हैं, वो सब चीजें हमारे इस स्टडी के अंदर हैं। एक रेगुलर डेंटिस्ट्री होती है जिसमें आपको पता होगा, सपोज cavity is there, you just remove the decay and then you fill it with a material which is non cosmetic, मतलब पहले सिल्वर रेस्टोरेशन, गोल्ड रेस्टोरेशन, इस तरह के रेस्टोरेशन। लेकिन आजकल जो रेस्टोरेशन है, दे आर सो सीमलेस दैट यू कैन नॉट इवन मेक आउट दैट दे आर रेस्टोरेशन। वो रेस्टोरेशन ऐसे आपको पता भी नहीं चलता। सो कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री प्राइमरीली डील्स विद द थिंग्स व्हिच रेस्टोर्स द टूथ इन द मोस्ट नेचुरल वे। इनफैक्ट कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री के साथ साथ आई प्रैक्टिस मिनिमली इन्वेजिव डेंटिस्ट्री। मिनिमली इन्वेजिव डेंटिस्ट्री के अंदर हम जितना सिर्फ खराब पोर्शन है उतना निकालते हैं और फिर उसको हम रेस्टोर, जहां तक हो सकता है वहां तक हम नेचुरल टूथ को बचाने की कोशिश करते हैं। खराब से खराब दांत भी आजकल बिकॉज ऑफ द एडवांसमेंट इन द मटेरियल्स यू कैन एक्चुअली रेस्टोर मोस्ट ऑफ द टीथ। एंड जब भी आप आपके ही दांत को रेस्टोर करते हैं तो बॉडी की एक्सेप्टेबिलिटी उस ट्रीटमेंट को लेकर ज्यादा हो जाती है। जैसे आजकल आपने देखा होगा कि बहुत सारे डॉक्टर डेंटिस्ट में मैंने देखा है कि वो आजकल टूथ निकाल देते हैं, आर्टिफिशियल इम्प्लांट लगा देते हैं, जबकि वो जो खराब दांत था उसको बचाया जा सकता है। तो these two aspect, कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री एंड मिनिमली इन्वेजिव डेंटिस्ट्री, ये दो ही जो है आज का प्रेजेंट डे के अंदर ट्रेंडिंग है एंड दे आर फ्यूचर ऑफ डेंटिस्ट्री आल्सो। Thank you, sir. It helps a lot. Sir, can you just give some major difference between a cosmetic dentist and the regular dentist? एज आई सेड, रेगुलर डेंटिस्ट फंक्शनल एस्पेक्ट पे ज्यादा फोकस करते हैं, मतलब खाने पीने के अंदर तकलीफ नहीं आनी चाहिए। कॉस्मेटिक डेंटिस्ट दे गो वन स्टेप अहेड, नॉट जस्ट ऑन द फंक्शनल एस्पेक्ट बट आल्सो ऑन द एस्थेटिक एस्पेक्ट, कि दिखने में भी प्लीजिंग। आज हम बहुत सारी चीजें करते हैं। आज सपोज मान लीजिए हम सिंपल कुछ भी पहन सकते हैं, बट ह्यूमन एक ऐसी प्रजाति है जहाँ पे हम हमेशा ब्यूटी के जो मायने हैं हर बार उसको हम चैलेंज करते हैं। We groom ourselves well. We wear the best of the stuff what suits us. So beauty has been a very integral part. So I always feel cosmetic dentistry takes you one step ahead of the regular dentistry. We don't just restore the functional aspect, we also restore the aesthetic aspect. Thank you, sir. This is really fascinating, and we would really like to join your field. Thank you. Welcome, sir. Can you tell what is your core personality forte? See, my core personality forte, I would tell that I always find out the easiest methods of things. जैसे एक होता है शॉर्टकट, एक होता है छोटा शॉर्टकट, एक होता है सबसे छोटा शॉर्टकट। So I always feel that what is the easiest way to do something. So the moment you start thinking this way, your creativity just flows in. तो मैं हमेशा मेरे हमेशा पर्सनालिटी फोटे अगर आप पूछते तो that is my core personality forte. I always want to make things more easier and I always believe that it's the simplest things in life that matters the most. सबसे छोटी चीजें सबसे पावरफुल होती है, सबसे सिंपलर चीजें सबसे पावरफुल होती है। आज अगर पूरा वर्ल्ड किसी चीज से परेशान हुआ है रिसेंटली तो वो हुआ है Disease. कोविड से, राइट? Yes. तो कोविड किसी ने देखा, मतलब वायरस को देख नहीं सकते हो, उसको देखना भी तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है। इसका मतलब है कि हमेशा लाइफ में अगर आगे बढ़ना है तो फोकस ऑन द वेरी स्मॉलेस्ट टू स्मॉलेस्ट थिंग्स। और जब आप कोई काम करते हैं उसका जब इजीएस्ट तरीका करने का आप ढूंढते हैं तब आपको उसके अंदर बहुत ज़्यादा रिसर्च डालना पड़ता है। जैसे मैंने पहले बताया था आपको अपने डिस्कशन के दौरान कि मेरा इश्यू था पहले मेमोरी का, तो मैंने खुद के अपने टेक्निक्स बनाए थे जिससे मैं याद कर सकूं। और हमारे मेडिकल फ्रेटर्निटी में इतने सारे टर्म्स होते हैं, बहुत डिफिकल्ट टर्म्स होते हैं, उनको याद रखने के लिए कोई ना कोई रास्ते ढूंढने पड़ते हैं। So likewise, always whenever you're working, you ensure that you find the easiest way to do that stuff. So that helps you develop your creativity a lot. Thanks, sir. We would like to implement in our life too. Sure, sure. So can you tell how can you attract our viewers towards your field? See, I never attempt to attract
anybody for that matter. I just be myself. I just keep doing what I want to do. If it is helping others, that is fantastic and fabulous. But whenever you're doing something, the first thing that comes to my mind is that I must enjoy what I'm doing. The moment you start enjoying, you don't have to tell people, please come and join my field. The moment you start being yourself, the moment you start being happy, the moment you start being energetic, automatically people get infected by your energy and they tend to choose the field which you have chosen. मतलब कोई मेरी ओर से मैं कभी अटेम्प्ट नहीं करता हूँ कि कोई भी वो फील्ड ज्वाइन करे, बट हाँ एक चीज़ बताऊंगा, जैसे मैंने पहले ही बताया कि डॉक्टरी फील्ड ऐसी है कि जिसके अंदर आपको खुद के बारे में जानने का मौका मिलता है। हाँ, और खुद को जानना मैं मानता हूँ एक बहुत बड़ी उपलब्धि है अपने आप में, तो इट मेक्स लाइफ मच मोर इजियर। Thank you, sir. Thank you very much, sir, for this session. It was really informative and motivating for us. We promise you that all our Gajra family would consider all your suggestions. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you very much for having me. Thank you. It's our pleasure, sir.